प्यारे बच्चों, डॉक्टर ब्रिजभूषण चौहान आपका इंग्लिश की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयां। आप 11वीं से पास होकर 11th पास आउट होकर 12th में आ गए। आई विश यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ माय स्टाफ, प्रिंसिपल एंड टीचर्स। कल से आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। इसमें सारे विषयों को पढ़ाया जाएगा। उसमें भाषा के हिंदी और इंग्लिश दोनों सिलेबस भी पढ़ाए जाएंगे। इंग्लिश की क्लासेस एचओडी श्री राजेंद्र जी, मेरे सहयोगी पवन जी, धर्मवीर जी और मैं स्वयं लूंगा। मैंने सोचा कि कल क्लासेस शुरू हों उससे पहले बतौर सिलेबस, very latest syllabus of UP board prescribed by UP board should be discussed with you। क्यों ना आप लोगों के साथ नया सिलेबस जो यूपी बोर्ड की परीक्षा प्रणाली ने आपके लिए नियोजित किया है, प्रेस्क्राइब किया है, उसको आपके साथ साझा कर लूं। तो कल जब क्लासेस शुरू होंगी, अनियत समय पर आप उपलब्ध होंगे। आपके सम्मानित शिक्षक आपको संबंधित विषय से अवगत कराएंगे। उससे पूर्व मैं आपको यह बता दूं कि विगत वर्षों में एक परिवर्तन आप लोगों के लिए सरकार द्वारा किया गया है। पहले 11th और 12th दोनों की पुस्तक साझा पुस्तक होती थी और उस कंपाइल बुक को एक नहीं वरन 2 वर्षों में पढ़ा और पढ़ाया जाता था। अब वो सिलेबस अलग अलग कर दिया गया है। +1 में अलग कंटेंट है, कुछ चैप्टर्स, कुछ पोइम्स, एक लॉन्ग पोइम और सर्टेन ग्रामर के पॉइंट्स उसमें डिस्कस किए गए हैं जो प्रथम वर्ष यानी +1 में पूछे, बताए और पढ़ाए जाते हैं। जबकि सेकेंड ईयर में अन्य कुछ प्रोज के चैप्टर्स, पोइम की संख्या लगभग आधी कर दी गई है। शॉर्ट स्टोरी, एक प्ले और ग्रामर के सर्टेन टॉपिक और तमाम सारे कंटेंट्स हैं। मैं आपको यह बता दूं कि आपके प्रश्न पत्र में 2 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए विल कंटेन 50 मार्क्स। द मटेरियल ऑफ द फर्स्ट ए सेक्शन विल कंटेन 50 मार्क्स। टोटल 12 सवाल होंगे। 12 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड in your paper examination. The first one question will be of explanation with the reference of the context. This will be the one passage from your prose book. It will contain 8 marks. Similarly, the another question will be there to be explained by you from the poem. You will have to attempt both the explanations from prose and poetry. This will contain 60 marks. Each question will be of 8 marks. One short answer type question from prose will be asked. This will contain 4 marks for you. This will not be exceed from 30 words. You will have to answer your question only in 30 words. The third question will be of vocabulary. This will be based on your prose text. This will contain only 4 marks. The fourth question will be from the poem book. From the poems, this will be of central idea. You will have to write any one of the poem, central idea of any one of the poem. This will carry 6 marks in your favor. Number 5, question number 5 will be there. It will be a long answer type question from the Merchant of Venice. It is a play, will be discussed in the scenes and you will have to write the answer. There will be the limit
just to answer the question. It will not more than 75 words. You will have to answer your question all in 75 words. The question 6 will be asked 2 short answer type questions from the short stories. Very short questions will be there. You will have to answer them only in 30 words. Not more than 30 words you have to write them. The number 7 question from the A section will be from the poetic efficiency of yours. This will be from the figures of speech. There may be 2 types of the questions. You may have to define the figures of speech with the examples. Moreover, you can exemplify or recognize the figures of speech by the examples given by the paper setter. This will contain 50 marks. The section A will complete and contains 50 marks questions to be solved. Another part is called section B. Section B will contain 50 marks questions just to be solved. This will be the portion of grammar. First of all, you will have to answer direct and indirect. Out of 2, do only 1. आपसे 2 सवाल डायरेक्ट इंडायरेक्ट से पूछे जाएंगे, जिनमें से किसी एक सवाल को ही आपको हल करना है, और ये सवाल आपके लिए 2 अंक ओनली विल 2 मार्क्स, केवल 2 अंक के लिए आपको ये मिलेगा. देयर विल बी अ चॉइस. अनदर टॉपिक will be of synthesis. There will be the 2 questions from the synthesis. You will have to answer 1. This will carry 2 marks. Another C, A, B, C. The C point will be of transformation. Out of 2, you will have to solve any one. This will contain 2 marks. The D part of this grammar section, section B, will be syntax, means the correction of the sentences. Out of 4, do only 2. 4 करेक्शन के सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे और उन्हें आप सुधारेंगे, करेक्ट करेंगे और उनका सही रूप लिखकर आप 2 अंक प्राप्त कर सकेंगे. 4 सेंटेंसेस में से किन्हीं 2 सेंटेंसेस को अटेम्प्ट करने पर आपको 2 मार्क्स प्राप्त होंगे. आगे क्वेश्चन नंबर 9. पैटर्न चेंज हुआ. यू विल हैव टू अटेम्प्ट द वोकैबुलरी क्वेश्चंस. यहां शब्द से संबंधित आपकी शाब्दिक योग्यता, क्षमता और सामर्थ्य को जांचा परखा और पूछा जाएगा. यू विल हैव टू आंसर द क्वेश्चन, द वर्ड्स related to opposites, synonym, antonyms, homophones, and one-word substitution. There will be one more question will be asked. That is idioms and phrases. The A is synonym, the B is antonyms, the C is homophones, the D is one-word substitution, the E is idioms and phrases. Then there comes the turn of the question number 10. This is the gist of the English language. The question will be asked, 10वां सवाल, the 10th question will be asked from the translation. You will have to translate Hindi to English. आपको एक हिंदी के गद्य खंड को इंग्लिश में ट्रांसलेट, उसका वर्जन चेंज करना पड़ेगा. हिंदी से इंग्लिश में आपको अनुवाद करना है एंड ये अनुवाद आपको 10 नंबर की मदद प्रदान करेगा. इट्स ए
वेरी बिग क्वेश्चन। कभी मत डरिए मेरा सिर चक्कर खा रहा है तो माई हेड इज हीटिंग, सर्कल सर्कल नहीं, भाव को समझिए। शब्दों का ट्रांसलेट नहीं किया जाता। कम्युनिकेशन में व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, मनोदशा क्या कह रही है यह समझकर कर्ता को ढूंढें और अपने, और वैसे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास से ही सिद्ध होता है। हम बताएंगे, आप करेंगे, धीरे धीरे सब सीखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11 विल बी ऑफ essay writing. This will contain 12 marks. Very easy and very difficult. न जाने किस टॉपिक पे आपसे प्रश्न का उत्तर पूछा जाए। अभी कोरोना, आने वाली साल में द एपिडेमिक, महामारी, कोरोना पे डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन एनी एपिडेमिक दैट यू विटनेस्ड, ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है। बहुत सामान्य जो प्रश्न होते हैं, डे टू डे लाइफ से ही प्रश्न का टॉपिक, निबंध का टॉपिक उठाया जाता है। प्रॉब्लमेटिक एस्से एक जरूर रखा जाता है। तो एस्से राइटिंग 12 अंक का यह प्रश्न 11वें क्रमांक पर आपके लिए होगा। इट इज वेरी पेई। थोड़ा सा थॉट कंटेंट हो, थोड़ा परोसने की सामर्थ्य हो, निश्चित आपको अच्छे अंक मिलते हैं। द लास्ट क्वेश्चन, वेरी इजी एंड वेरी डिफिकल्ट। Unseen passage. This passage is not from the any book. It is from outside. ये किसी न्यूज़पेपर का हिस्सा हो सकता है, किसी आपके द्वारा ना पढ़ी गई किताब का हिस्सा हो सकता है, और उसमें से चंद सवाल, कुछ शब्दों के अर्थ, कुछ रेखांकित वाक्यों के सब बताया जाएगा आपको। टॉपिक बाय टॉपिक टीचर्स विल बी there in the classroom to discuss all the syllabus. थोड़ा सिनेरियो, थोड़ा जियोग्राफिया आपके मन, मस्तिष्क, आत्मा, बुद्धि, विवेक सब पर जागृत रहे, सवार रहे, और ये भी पता रहे हमें कहाँ जाना है, कैसे करना है, कहाँ, कब, क्यों, कैसे जैसे सवालों का आपके मन मस्तिष्क पर प्रभाव अंकित रहे। आप क्या जान रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप पूरे ही दिन आप ऐसे करते रहे, और वो जो बहुत पेई चीज है वोकैबुलरी, वोकैब्स ऐसे हम लोग बोलते हैं, वोकैब्स, जो आपका वोकैब्स है, वोकैबुलरी आपने की ही नहीं, वो एक रात में थोड़ी ना हो सकती है। और जीवन भर 10 20 10 20 25 10 20 25 10 20 30 वर्ड्स पर डे अगर आपने अपने डिक्शनरी में, पर्सनल डिक्शनरी में एनहेंस किए हैं, जोड़े हैं, ऐड किए हैं, सबमिट किए हैं, तो आपकी वोकैबुलरी बहुत रिच हो जाएगी। यू आर रिचर देन द रिचेस्ट। यू आर द बेस्ट, यू आर द रिचेस्ट। If you don't have money in your purse, don't worry. You must have honeyed word with your tongue. आपके पास पैसा नहीं है, डोंट वरी, लेकिन मीठे शब्द है, अल्फाज हैं, अपनी बात कहने का ढंग है, यू विल बी बेनिफिटेड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन योर निज क्षेत्रे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा तो अपने क्षेत्र में जाना पहचाना और माना जाता है, उसके सम्मान की गणना, उसके सम्मान की सुरक्षा, उसके मान की प्रतिष्ठा उसके ही क्षेत्र हुआ करती है, होती है। परंतु सम्मानित व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति यदि जंगल में भी बैठा हो तो वो अपना परिकर, परिसर और परिजनों को अपने अनुभव के आधार पर, अपने ज्ञान की प्रस्तुति के कारण, सम्मति के कारण उन्हें अपना बना सकता है। तो बच्चों, ये आप लोगों को मैंने एक छोटा सा सिनेरियो, एक संभावित दृष्टिकोण, ब्लैक बोर्ड के अभाव में ये सब अच्छे से नहीं बता पाया, परंतु कोई बात नहीं, बार बार सुनेंगे, 2-4 बार सुनिए और आपको मालूम पड़ेगा कि इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य ये था कि जिस नाव में हम बैठे हैं, सवार हैं, उसमें 100 व्यक्ति ही बैठ सकते हैं। 90 बैठे तो नुकसान है, और 101 बैठे तो भी नुकसान है। साथ ही ये भी बता देना मेरा अपना पुनीत कर्तव्य है कि अंग्रेजी भी उतनी ही
अंकों के सवाल और मार्कशीट में अपनी एग्जिबिटनेस रखती है, उसका प्रदर्शन भी उतना ही है जितना फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, बायो का है। आप ये ना समझें हिंदी और अंग्रेजी आपको कहीं कम पढ़ने से अधिक अंक दे सकती है। जिसकी भाषा, जिसका व्याकरण, जिसका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा होता है, वो अपने किसी भी विषय में महारत हासिल कर सकता है। हाउ टू राइट, वेयर टू राइट, व्हाट टू राइट, ये सब सीखना और सिखाना हमारा आपका काम है। सबसे पहले आप ये समझें कि कितने मार्क्स की कौन सी बुक आ रही है, उसमें कैसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। आप अपने उत्तर का अनावश्यक विस्तार तो नहीं दे रहे हैं। लिखना आपको 30 वर्ड्स में, आपने 60 लिखा तो यू हैव लॉस्ट योर टाइम, मनी एंड एनर्जी। मैटर तो ज्यादा लिखा बट आंसर तो कुछ शब्दों का ही है। वही शब्द उस उत्तर में आने चाहिए। ज्यादा लिखना, ब्रीविटी इज द सोल ऑफ लिटरेचर। संक्षिप्तता में साहित्य के प्राण छुपे होते हैं। विद्वान व्यक्ति अपनी भाषा कम शब्दों में प्रभावी ढंग से कह पाता है। मुझे लगता है कि आने वाली क्लासेस, आने वाले मेरे साथी एचओडी राजेंद्र सिंह जी के निर्देशन में, कुशल निर्देशन में आप सबका मार्गदर्शन करेंगे। उससे पहले आप अपने मन में ये ब्लूप्रिंट अच्छे से प्रिंट कर लीजिए। आप अपना वो जो इनपुट बना लीजिए कि इन व्हाट वे यू हैव टू स्टडी प्रोज, पोएम, शॉर्ट स्टोरी, मर्चेंट ऑफ वेनिस and the related topics of grammar. Up to what time you have to prepare for the examination, for the preparation. समंकों को समानता के साथ सारे विषयों को समय बराबर दीजिए। हिंदी और इंग्लिश में जो आपकी बुक्स हैं उनको कितने अंक के सवाल आपसे पूछे जाएंगे के हिसाब से समय दीजिए, तरजीह दीजिए, तवज्जो दीजिए। मुझे लगता है परिणाम बहुत अच्छे होंगे। और एक अच्छा युद्ध लड़ने के लिए, एक अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए आपका कुशल नियोजन, आपकी सामर्थ्य और आपका सेनाओं का और सैनिकों का जो समीकरण है वो दिशा के अनुसार दशानुरूप घटित होना चाहिए। इसके लिए मेरी आपसे गुजारिश है और ये आपकी जरूरत भी है कि आप पहले ये समझें कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। 30 शब्द का उत्तर लिखना है, उसके लिए 30 घंटे थोड़ी ना पढ़ना है। चैप्टर मस्ट बी क्लियर विद द आइडियल स्टेट ऑफ द स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल द गर्ल विद बास्केट आपका पहला चैप्टर है। अब उसमें लेखक ने भारतीय बच्चों की मानसिकता के द्वारा उनके डिग्निटी के सेंस को, स्वाभिमान, आत्मसम्मान और भारतीय लोगों की मनोदशा का चित्रण किया। तो क्वेश्चन कहीं से भी आए वो यही आएगा, चाहे एक्सप्लेनेशन पूछा जाए या आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए व्हाट डिड राइटर वांट टू गेट फ्रॉम द नेटिव्स ऑफ इंडिया के नेटिव से लेखक क्या चाहता था। बच्चों से मिला, प्लेटफॉर्म पे लोगों से मिला, कहीं भी कोई प्रश्न हो उसकी निरंतर उसकी जो आत्मा है, सोल ऑफ द चैप्टर मस्ट बी देयर विद द स्टूडेंट बाय द टीचर। वो कब होगा? जब आप रेगुलर क्लासेस में होंगे। टीचर को सुनिए, ऐसा नहीं करिए कि आज पढ़े और कल नहीं पढ़े। सबसे बड़ा अभाव तो यह है हमारे आपके बीच में इंटरेक्शन नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं, आप कुछ पूछ ही नहीं पा रहे। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो मेरा नंबर ऊपर एडमिन के रूप में आपको मिलेगा। आपकी किसी भी क्वेरी का हृदय से हार्दिक आभार, सम्मान के साथ स्वागत। आपके प्रश्न ही मेरे उत्तर होंगे। मैं उत्तर तो जब ही दूंगा जब आप प्रश्न करेंगे। मुझे अच्छा लगेगा कि आपके अच्छे से अच्छे प्रश्न, जटिल से जटिल प्रश्न मुझसे पूछे जाएं और मैं प्रयास करके, कोशिश करके आपको संतुष्ट करने की कोशिश करूं। पुनः आपको कल से होने वाली आपकी ऑनलाइन क्लासेस, व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
मुझे आशा ही नहीं वरन विश्वास भी है कि नए प्रिंसिपल श्री वीरेंद्र सिंह जी के आगमन के साथ ये नई परंपरा का अभ्युदय जो हुआ है, इससे हम और आप निश्चित कुछ अच्छा कर पाने में सामर्थ्यवान होंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा आशीर्वाद कि आप अपने विषय को अच्छे से समझकर उस रास्ते पर चलें जहां सफलताएं आपका इंतजार कर रही हैं, परिणाम आपकी प्रतीक्षा कर रहा है।